Hello everyone, I am Dr. Minu from Government Senior Secondary School ਚਲਾਲ ਉਸਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ 4 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ DE ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC, DE ਜੋ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DE ਜੋ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੈ BC ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ DE ਇੱਕ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਥੀਲਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਆਹ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਤੀ DE, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ AB ਤੇ AC ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, AB ਨੂੰ D ਤੇ AC ਨੂੰ E ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AD। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ AD ਵਟਾ AB, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, AE ਵਟਾ AC ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, AD ਓਵਰ AB ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੇਮ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, AD ਓਵਰ AB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੇਗਾ, AE ਓਵਰ AC ਦੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AE ਓਵਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ DB ਤੇ ਪੂਰੀ AB ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ EC ਤਾਂ AC ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, DB ਓਵਰ AB, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, EC ਓਵਰ DB। ਇਧਰੋਂ DB ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ AB ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, DB ਓਵਰ AB ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, AC ਓਵਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, AC, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ AD ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ AD ਨੂੰ DB ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, AD ਓਵਰ DB ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ AD ਓਵਰ DB ਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, AE ਓਵਰ EC ਦੇ, AE ਓਵਰ EC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ AD ਓਵਰ AB, AD ਓਵਰ AB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AE ਓਵਰ AC ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ AD ਓਵਰ DB, AD ਓਵਰ DB ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ AE ਓਵਰ EC ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਬਚ ਗਿਆ, BD ਓਵਰ AB, ਆ ਦੇਖੋ DB ਓਵਰ AB ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, EC ਓਵਰ AC ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, AB। ਠੀਕ ਹੈ, AD ਓਵਰ AB ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ AD ਓਵਰ AD ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ AE ਹੈ, AE। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ EC, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, AD ਓਵਰ ਪੂਰਾ AB ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ AC ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ EC ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दी किहड़ियां भुजावां नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल दे विच तुहानूं पता है कि किहड़ा रिजल्ट लगदा हुंदा है, करण दा स्केयर किहदे इक्वल हुंदा है, लंब दा स्केयर प्लस आधार दा स्केयर। ठीक है, वो तो मैथड है ही, वो तो तुहानूं सब नूं पता ही है कि असीं किस तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक मैं तुहानूं होर चीज़ दसदी इहदे विच, इहदे विच मैं तुहानूं दसदी हां पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस या पाइथागोरस त्रिगुट जिहनूं तुसीं पंजाबी विच कह दिंदे आ, ਉਹ देखो किहड़े हुंदे आ। पहलां ਤਾਂ तुहानूं पता होना चाहिए कि 3 4 ਤੇ 5 ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ त्रिगुट ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੈਂਦੇ ਆ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ठीक है, 25 बराबर 25 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ त्रिगुट ਲੈਂਦੇ ਆ 3 4 5 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਲੇ त्रिगुट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, किसी नंबर के नाल मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर के नाल तिन्नों मल्टीप्लाई करोगे तो वह भी एक पाइथागोरस त्रिगुट ही बनेगा। ठीक है, मान लो कि जिदा ये सारे नंबर में 2 नाल मल्टीप्लाई कर देवां, जो 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी ये बनेगा 6, 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो बनेगा 8, 5 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो बनेगा 10, 6 8 10 भी जो है वो भी की बनते होंगे पाइथागोरस त्रिगुट। बाकी जो मेन पाइथागोरस त्रिगुट है बेटा तुसीं इहनूं अपने माइंड 'च ही रख लो। देखो किहड़े किहड़े हुंदे आ, 3 4 5 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे आ। उस तो बाद होंदा 5 12 13 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे आ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6 8 10 7 24 25 8 15 17 ਅਤੇ 9 12 15 ये सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, पाइथागोरस त्रिगुट ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 3 4 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ त्रिगुट ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ त्रिगुट ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 5 12 13 5 12 13 ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਹੀ 6 8 10, ਦੇਖੋ 6 8 10 भी होंगे, जो तुम इन्हों मल्टीप्लाई करके देखोगे किसी कॉन्स्टेंट नंबर के नाल तो ये भी बनते होंगे आ। तो रह गई कि साढ़े को ऑप्शन नंबर सी। यदा मतलब जी ऑप्शन नंबर सी है वो जो है समकोणी त्रिभुज ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ नहीं हो सकदियां। ठीक है बेटा, उदा कंसैप्ट देखो की होंदा कि असी पाइथागोरस थ्योरम लगाने आ। पाइथागोरस थ्योरम ਦੀਆਂ जो साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, जिद्दां मान लो 3 4 ਤੇ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ करण, ये मान लो 5 है। उस तो बाद दूसरी एक लंब है तो एक की होएगी आधार, एक होएगी लंब मान लेंगे असीं कितना 3 है तो एक असीं मान लेंगे आधार कितना 4 है। तो की हुंदा फॉर्मूला पाइथागोरस का, करण स्केयर किहदे बराबर हुंदा, लंब के स्केयर दे प्लस आधार के स्केयर के बराबर हुंदा। ठीक है, हुण इहदी वैल्यू पुट कर दो। देखो 5 का स्केयर किहदे बराबर बन गया, 3 के स्केयर दे प्लस 4 के स्केयर दे। तो 5 5 कितने होंगे 25, 3 3 होंगे 9, 4 चौके होंगे 16, 16 तो 9 कितने बन गए 25, 25 बराबर 25। ठीक है, जो ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई होंगी है उदों असीं कहंदे हुंदे आ कि जे आ चीज़ होल्ड करती आ, मतलब करण का स्केयर लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर के बराबर बन जाता वा, तो वह वाली जिहड़ियां साइड्स हुंदियां वा उहनूं असीं कहंदे हुंदे कि समकोण त्रिकोण दीयां त्रिभुजां है वो, क्योंकि समकोणी त्रिकोण दे विच ही करण लंब ते आधार हुंदे आ ते उहदे विच पाइथागोरस थ्योरम लगदी है। ठीक है, तो हुण तुसीं इहदे विच देख लो 5 6 7 की जो गल कीती आ तो 5 6 7 दे विच तुसीं देख लो जिहड़ी वड्डी भुजा आ 7 है। 7 का स्केयर देखो तो बराबर आ रहा 6 का स्केयर प्लस 5 के स्केयर दे। इहदा स्केयर हुंदा 49, इहदा हुंदा 36, इहदा हुंदा 25। तो ये किहदे इक्वल आ गया 61 दे। 49 का 61 दे इक्वल नहीं हुंदा। इहदा मतलब वैसे भी तुसीं देख लो कि ये जिहड़ियां तीनों साइड्स आ समकोण त्रिभुज दीयां भुजावां नहीं हो सकदियां। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ये पूछा इन्होंने, हाउ मैनी टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक चक्कर के बाहरी बिंदु तो कितनी स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। हाँ जी, देखो आही क्वेश्चन आही लगा लो। नैक्सट क्वेश्चन देखो, यदि डायग्राम तो देख लें। आ कोई बाहरी बिंदु आ स्पर्श रेखा, आ चक्कर नूं जिहड़ी रेखा छूह के निकलती है उन्होंने असीं स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो बाहरी बिंदु तो हमेशा कितनियां स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां, 2 स्पर्श रेखावां।
ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ O PQ ਤੇ PR, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਲ QOR, ਐਂਗਲ QOR ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਐਂਗਲ QOR ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮ ਤੇ ਐਂਗਲ QPR ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 180 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। QOR ਇਹਦਾ ਤੇ QPR ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 180 ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, QPR ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 46 ਡਿਗਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ QOR ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। 180 ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 46 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 180 ਮਾਈਨਸ 46 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ, 134 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਲੱਭਣਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਥਿਓਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਮਭੁਜੀ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ B ਦਾ ਜੋ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ Q ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ, ਆਹ A ਹੈ, ਆਹ ਹੈ S, ਆਹ ਹੈ D ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ R ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ABCD, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, AB + CD ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, AD + BC ਦੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਇਆ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ
प्रूफ इस थ्योरम ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ? 4 ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ A, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ B, ਇੱਕ ਹੈ ਬਿੰਦੂ C ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ 4th ਵਨ ਹੈ D। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ BQ ਤੇ ਇਧਰੋਂ B ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ BP। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, P ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ C ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ CR ਤੇ C ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ CQ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ। 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। D ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ DR ਤੇ DS। ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ A ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ DR ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ DS। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ 2 ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ A ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ AS। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BQ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ BP ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BQ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BP। ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CR ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ CQ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ DR ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ DS ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ AP ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ AS ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗੀ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ AP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AS, BQ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BP, CR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CQ ਐਂਡ DR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ DS। ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AP ਪਲਸ PB। AP ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ BP ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ AB। ਹੁਣ CR ਪਲਸ DR ਦੇਖ ਲਓ, CR ਤੇ RD ਜਾਂ DR ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ CD। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ CD। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ AD ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ AD ਲਾਈਨ A ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਪਈ AS ਤੇ SD ਤੋਂ। AS ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ SD A ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ AD। ਤੇ BQ ਤੇ CQ, BQ ਤੇ CQ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਟੋਟਲ BC। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲਸ BC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ AB ਪਲਸ CD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ AD ਪਲਸ BC ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਏ। क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी पौड़ी एक कंध नाल लगाउण ते ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਪੌੜੀ 10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਕੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਧ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਪੌੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ B ਐਂਡ C। B ਤੇ C ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगनी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, AC ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੇਗਾ, AB ਸਕੁਅਰ प्लस BC ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ AC ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 मीटर ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू AB कितना दिता होया 8 मीटर ਸਕੁਅਰ प्लस BC ਸਕੁਅਰ है। ਹੁਣ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 10 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਮਤਲਬ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64 प्लस BC ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। BC ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 100 इधर ऑलरेडी पहले पिया होया, 64 इधर प्लस का उधर जाके की बनेगा माइनस का 64 तो ये के इक्वल बन गया BC स्क्वायर दे। इन्हों जो सॉल्व किया तो ये कितना आ गया तुहाडे कोल 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इत्थे मीटर नहीं लिखा बेटा, अदरवाइज मीटर स्क्वायर इत्थे बन जाना सीगा। तो ये के इक्वल बन गया साडे कोल BC स्क्वायर। हुण BC असीं फाइंड आउट करना, इधर स्क्वायर है तो इस साइड ते जाके की बन जाना उहदा अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर का बन गया अंडर रूट। तो 36 ने जो अंडर रूट तो बाहर आना इन्हें की बनना 6 मीटर। सो BC की जो वैल्यू आई BC का जो आंसर है वो आ गया 6 मीटर। यदा मतलब की होया कि कंध के आधार तो पौड़ी के हेठले सिरे की जी दूरी है वो कितनी आ गई 6 मीटर। अदरवाइज बेटा मैं तुहानू पहला ही पाइथागोरस ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ 8 ਹੈ 10 ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 6 8 ਤੇ 10। हाँ जी बेटा 6 क्वेश्चन ਵਿੱਚ देखो की है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है जिस विच AB की है जो पैरेलल है DC ਦੇ। ठीक है, आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹੀ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ABCD ਕਿੱਥੇ ਆ, A ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ B, A ਪੁਆਇੰਟ C, A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ D। ठीक है, AB है जो ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ DC ਦੇ। AB ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ DC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ AO ਓਵਰ OB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ CO ਓਵਰ OD ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਸੇਮ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ABCD ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बेटा। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी होंगी है तुहानू उहनू ही तुसी लिखना होंदा स्टेटमेंट नू, ते उस तो बाद की होंदा इन्हां दे नाम रख के नाम जिहड़े पर्टिकुलरली दस दीदे होंदे दे विच दित्ता होए च। ABCD की है एक समलंब चतुर्भुज है, ये तुहानू ऑलरेडी दिता ही होया इन्हां ने, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिहदे विच की है विकर्ण है दे देखो AC आ विकर्ण हो गए, दूसरा की है BD। तुसी ये चीज़ इत्थे लिखनी है, मैं लिखण नहीं लगी, तुसी बट लिखनी है। की लिखना तुसी विकर्ण AC ते विकर्ण AC ਅਤੇ BD दोनों आपस में किस बिंदु पर कटते पे आ, O बिंदु पर कटते पे आ। ठीक है, आ रहा बिंदु O, दोनों विकर्ण O पॉइंट ते कट रहे हैं। उस तो बाद तुसी लिखना सिद्ध की करना है। ठीक है, की चीज़ प्रूव करनी सी, सिद्ध की करना है वो चीज़ किहड़ी है जो तुहानू इत्थे दित्ती हुई आ उही तुसी इत्थे लिखनी है। ठीक है, की प्रूव करना सी AO ओवर OB है जो ये किहदे इक्वल आ रहा CO ओवर OD दे। उस तो बाद रचना, हाँ जी रचना ये सानू करनी पैनी है अपने किसी भी क्वेश्चन या किसी थेरम नू प्रूव करने वास्ते। असी अपने कोलों जिहड़ी चीज़ लैके चलते हैं, जिहड़ी चीज़ असी अपने कोलों ड्रॉ करनी है इत्थे वो साडे कोल कंस्ट्रक्शन या असी रचना बोलते हैं। असी O पॉइंट तो एक पैरल लाइन खिंचन लगे, देखो आ रचना की आ, इहदा नाम असी रखता F। ठीक है, O पॉइंट तो असी एक बिंदु लिया F, आ जिहड़ा ये जिहड़ी लाइन है OF ये की समांतर है CD दे भी ते AB दे भी समांतर है। ठीक है, रचना दे विच फिर साडे कोल की आ गया O तो
असी की लिया एफ ओ है जो समांतर, ठीक है। पैरेलल लाइन से सिंबल एक नोट करता है समांतर है। कौन समांतर है? एफ ओ किहदे समांतर है? डी सी दे, ठीक है। तो ए एफ ओ जो है डी सी दे भी समांतर है, तो ए बी दे भी समांतर है। इत्थे असीं लिख लिया ए पैरेलल टू ए बी, खिंचिया, ठीक है। उस तो बाद आ गया सबूत। हुण इहनूं असीं प्रूफ किद्दां करना, इहदा हुण असीं लिखना है सबूत। सबूत विच देखो बेटा असीं इत्थे कंस्ट्रक्शन कीती हुई है, ठीक है। इहदे वास्ते असीं एक ट्रायंगल कंसीडर करन लगे हाँ डी ए बी। डी ए बी देखो ए वाली ट्रायंगल लैन लगे सी डी ए बी। इस ट्रायंगल दे विच देखो की है हुण आ जिहड़ा एफ ओ है तो ए बी दे समांतर है। जे ए दे समांतर है तो सानू एक रिजल्ट पता है। देखो मूल समान अनुपात दा थ्योरम दा जो मैं तुहानू पहला एक्सप्लेन कर चुकी हाँ। देखो सबूत में तुसीं की लिखना, पहला तो जो असीं ट्रायंगल लैन लगे वो लिखो। ट्रायंगल है डी ए बी। इस ट्रायंगल दे विच देखो जो एफ ओ है ये समांतर है, किहदे समांतर है? ए बी दे। एफ ओ किहदे समांतर है? क्योंकि असीं ट्रायंगल ए वाली ले रहे हैं बेटा, तो आ वाली चीज़ इहदे समांतर है। जे आ इहदे समांतर है तो याद करो मूल समान अनुपात दा थ्योरम फर्स्ट क्वेश्चन ही सी जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बन जाएगा जो डी एफ है डी एफ ओवर एफ ए ये किहदे इक्वल आएगा डी ओ ओवर ओ बी दे इस ट्रायंगल तो। मैं लिख देनी इत्थे डी एफ ओवर एफ ए है जो इन्हें किहदे इक्वल आना है डी ओ ओवर ओ बी दे, ठीक है। डी ओ ओवर ओ बी दे ये किहदा रिजल्ट लग रहा है? मूल समान अनुपात का या फिर थेल्स थ्योरम का, ठीक है। इन तुसीं इधर ब्रैकेट से रीजन दसना है। जो जो क्वेश्चन दे विच जिहड़ी भी चीज़ तुसीं लै रहे हो उहदा प्रूफ उहदा जो रीजन है वो तुसीं जरूर देना। इहदे नाल ही मार्क्स ज़्यादा वधदे हुंदे बेटा, रीजन जरूर देना नाल। मूल समान अनुपात दा जो थ्योरम है उहदा रिजल्ट लग्या, ठीक है। आज साडे कोल बन गई, इहनूं असीं लिख दित्ता इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आही वाले जिहड़ा असीं ओ एफ लिया सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ये भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी ट्रायंगल लैनी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर तो एफ ओ आवी। पहली ट्रायंगल असी आ वाली ले ली सी, दूसरी ट्रायंगल असी लैन लगे हाँ डी सी ए। डी सी ए पहला इस पार्ट तो लई सी, हुण असी लैन लगे हाँ इस पार्ट तो, ए वाली पार्ट तो असी लैन लगे हाँ। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ओ एफ है जो ये किहदे पैरेलल आ रहा डी सी दे। पहली वारी दे विच असी ए बी दे पैरेलल ले लिया सीगा, दूसरी वारी डी सी दे लिया सी जो। हुण ए वाली जिहदे विच बेस बनता पिया ओ वाली ट्रायंगल ले ली, पहला जिहदे विच आ बेस बनता सी असी ओ वाली ट्रायंगल लई सी, ठीक है। हुण असी किहड़ी ट्रायंगल लैन लगे त्रिभुज ए डी सी जां बोल दो डी सी ए। इहदे विच देखो की है एफ ओ है जो वो किहदे पैरेलल आ रहा है डी सी दे। एफ ओ डी सी दे पैरेलल है, लगा दो फिर तो मूल समान अनुपात दा थ्योरम। उहदा रिजल्ट की बनता सी डी एफ ओवर एफ ए है जो वो कहते इक्वल आना सी सी ओ ओवर ओ ए दे। वही चीज़ इत्थे लिखन लगी मैं कि जो डी एफ है डी एफ ओवर एफ ए इन्हें कहते इक्वल आ जाना सी ओ ओवर ओ ए दे। रीजन की है? सेम ही है, मूल समान अनुपात प्रमेय है जो उहदा प्रयोग किया गया इत्थे। हुण की करना तुसीं क्वेश्चन नंबर 1 ते 2 देखो। 1 ते 2 दे विच देखो की है आ भी कि इहदी लैफ्ट हैंड साइड देखो, लैफ्ट हैंड साइड देखो ये वाली है, इधर की है डी एफ ओवर एफ ए। तो इक्वेशन नंबर 2 की भी देखो लैफ्ट हैंड साइड डी एफ ओवर एफ ए। जो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए या राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो दूसरी साइड भी इक्वल होंगी है। हुण ये इक्वेशन नंबर 1 ते 2 दे विच लैफ्ट हैंड साइड इक्वल आ, यदा मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होएगी। राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तुहाडे कोल है जो ओ डी इंटू ओ ए है इन्हें किहदे इक्वल बन जाना ओ बी इंटू सी ओ दे, ठीक है। तो हुण तुसीं की करना जो तुहानूं इत्थे पुछया होया देखो ओ ए इधर पिया होया, ओ ए नूं इत्थे ही रहन दो, इहदे नीचे की आ जाएगा आ ओ बी इज इक्वल टू सी ओ पहले ही पिया होया इधर, तो इस चीज़ नूं उहदे नीचे ले आओ। सो यही चीज़ असी प्रूव करनी सी।
ठीक है। सो इस तरह तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, नैक्सट क्वेश्चन देखो की सी 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन सी। थियरम है, मोस्ट एक्सपैक्टेड थियरम है जो फाइनल एग्जाम्स के विच भी, फाइनल पेपर के विच आने के भी चांसिस बहुत ज़्यादा है। सो इसकी स्टेटमेंट की है, सिद्ध करो कि बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां गई स्पर्श रेखावां दीयां लंबाइयां बराबर हुंदियां हन। We have to prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, एक चक्कर है, जिथे चक्कर आ गया सेंटर ओ तुसीं इत्थे लिखना ही लिखना था। बाहरी बिंदु है कोई, ਇਹਦਾ नाम दे दो। बाहरी बिंदु पॉइंट P। मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि बाहरी बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां खिंचियां जा सकदियां, ते असीं दो स्पर्श रेखावां खिंच दित्तियां। ਇਹਦਾ नाम रखता Q एंड R। Q एंड R का नाम रख दिता। हुण बेटा पार्ट्स दे विच क्वेश्चन करना, तुसी हमेशा ही इहनूं इदां करना, जिहड़ी चीज़ दित्ती हुई है वो लिखना, जो सिद्ध करना है, जो तुसी प्रूव करना है वो चीज़ लिखनी है, उस तो बाद रचना लिखनी है, फिर लिखना सबूत। ठीक है, 4 पार्ट्स दे विच इहनूं क्वेश्चन नूं करना है। इहनूं थियोरम नूं तुसी 4 पार्ट्स विच करना है। तुसी पूरा लिखोगे तो तुहानूं 6 नंबर मिलने। स्टैप बाय स्टैप इस थियोरम नूं करना है। ठीक है, हुण देखो फर्स्ट ते की है, तुसी की लिखना, तुहानूं की दिता होया है, की दिता है तुहानूं। देखो की दिता है, बाहरी बिंदु तो चक्कर ते खिंचियां गईयां स्पर्श रेखावां। असीं की करना हुंदा, नूं मैथमैटिक्स लिखना हुंदा। इन्हां दी नेमिंग, नाम इहदे पॉइंट्स लिख दिंदे हुंदे आ। P पॉइंट, पॉइंट दा नाम लिखता, बाहरी बिंदु ते किहड़ा, केंद्र की है चक्कर दा, चक्कर दा केंद्र की है O। केंद्र O वाला की कीता तुसीं, एक केंद्र O वाला एक चक्कर लिया, केंद्र O वाला एक चक्कर, अते चक्कर दे बाहर कोई बिंदु है, चक्कर दे बाहर स्थित कोई बिंदु है जिहदा नाम की रखिया P, ते P बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां खिंचियां चक्कर ते, उन्हां दे नाम रखते PQ एंड PR। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ अते, PQ अते PR दो ਜਿਹੜੇ ਆ स्पर्श रेखावां बना ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ सिद्ध करना चाहते हैं वो लिख लो। ਅਸੀਂ ਕੀ प्रूव करना, जो ਅਸੀਂ सिद्ध करना है वो चीज़ लिख दी। ਆਪਾਂ ਕੀ कहना चाह रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕੀ प्रूव करना कि बाहरी बिंदु तो चक्कर ते जो स्पर्श रेखावां हुंदियां ਉਹਦੀ लंबाई हुंदी बराबर। ਇਹਦਾ मतलब देखो एक स्पर्श रेखा हैगी PQ, दूसरी स्पर्श रेखा हैगी PR। असी की प्रूव करना कि जो PQ है, जो PQ है वो किहदे बराबर आ रहा है, PR दे। उस बाद एक असी रचना करनी है। रचना दे विच की करना आ, O ते P नूं मिला दिता, O ते P नूं मिलाया। ठीक है, इन्हां दोनों नूं मिलाता। ठीक है, सबूत दे विच देखो की हुण असीं करना। पहला जितने भी देखो तुहानूं मैं रिजल्ट दस चुकी हूँ, जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी ना कि मैं रिजल्ट तुहानूं दसूँगी। हाँ जी बेटा, वाला क्वेश्चन सी ना, चक्कर दे किसी बिंदु ते स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु तो जाण वाले अर्ध व्यास से लंब हुंदी है। हुण यही वाला रिजल्ट असीं उत्थे यूज़ करन लगे हां। चक्कर दे उपर कोई बिंदु स्थित है, इहदा नाम मान लो Q है। ठीक है, इस बिंदु तो आ अर्ध व्यास ते इह जिहड़ी स्पर्श रेखा, इस बिंदु के उपर आ स्पर्श रेखा आ गई, तो इधरों निकल के इहदा अर्ध व्यास, इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा कोण हुंदा वो 90 डिग्री का हुंदा। लंब का मतलब कहता 90 डिग्री। या वाला एंगल 90 डिग्री है तो ओबीअसली ये भी 90 होएगा। क्यों 90 होएगा, क्योंकि ए की है दा अर्ध व्यास। ठीक है, OR की अर्ध व्यास है, तो OQ भी अर्ध व्यास है। OQ एक अर्ध व्यास है, OQ एक अर्ध व्यास है। जो एक अर्ध व्यास है तो PQ की आ चक्कर की एक स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, मैं शॉर्टकट से लिख रही हाँ, तुसीं इहनूं बुक तो देख के प्रॉपर लिखना। एक स्पर्श रेखा का मतलब की हो गया, दोनों के जिहड़ा एंगल है PQO, ये किन्ना एंगल बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन गया। की रीजन सी जो तुहानूं पुछा होया सी उन्होंने, ठीक या गलत वाला की सीगा कि चक्कर के किसी बिंदु उत्ते, इसदा रीजन तुसीं बेटा प्रॉपर लिखना है। ठीक है, चक्कर के किसी बिंदु उत्ते स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु विचों लंघण वाले अर्ध व्यास ते लंब हुंदी है। ये 90 डिग्री बन गया। सिमिलरली आ वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, वो भी लिख लेना हुण असीं इत्थे कि एंगल है जो PRO है वो भी किहदे इक्वल बनता पाया 90 डिग्री दे।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ OP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ OPQ। ਦੂਸਰੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ OPR, ਆ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੈਕਿੰਡ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ। बेटा इस क्वेश्चन दे विच इस थ्योरम दे विच बेसिकली तुसीं करना की है, दो त्रिभुजां लै लैणियां, दो त्रिभुजां लैके उहनूं सरबंग सम दस देना, सरबंग सम शो कर देना। सरबंग सम शो करन वास्ते की सानूं तीन चीज़ां जिहड़ियां वो बराबर करनियां पैणियां। जे वो चीज़ां हो जांदियां ते त्रिभुजां जिहड़ियां सरबंग सम होणगियां। ठीक है, इहनूं इस तरह तुसीं अपने माइंड 'च रखना वा, थ्योरम नूं रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, दो त्रिभुजां वा 90 डिग्री का एंगल आ, इस करके लै लो दो समकोण त्रिभुजां किहड़ियां किहड़ियां आ, जिहड़ियां उपर मैं लिखियां 1 ते 2 नंबर। एक है त्रिभुज PQO अते दूसरी जिहड़ी त्रिभुज है वो बनदी पई आ PRO। इन्हां दे विच देखो की है, तीन चीज़ां बराबर करनियां। तीन चीज़ां देखो किहड़ी किहड़ी होणियां, आह वाली त्रिभुज ते वाली दे विच एक तां आह वाली चीज़ देखो 90 डिग्री एंगल आ ते ये भी 90 डिग्री एंगल आ। उस तो बाद की बनता पिया OP, ये भी आ उपर वाले ट्रायंगल 1 नंबर च भी है तो 2 वाले ट्रायंगल भी आ। ठीक है, तो तीसरी चीज़ कि बनती पई अर्धव्यास। अर्धव्यास क्योंकि सेम चक्कर का जोड़ा अर्धव्यास वो की होंगे बराबर, जिन्ना डिस्टेंस आ होएगा उन्ना डिस्टेंस आ होएगा। यदा मतलब की हो गया अर्धव्यास भी की हो गए बराबर। ठीक है, हुण असीं इहनूं इदां लिख लैंदे आ। पहला की आना आ कि जो एक एंगल है PQO वो किहदे एंगल बराबर बनता पिया PRO दे। क्यों बराबर है दोनों के, क्योंकि दोनों सेम 90 डिग्री के है। ठीक है, उस बाद दूसरी चीज़ में की सी OP, दोनों के सांझी आ। OP बराबर किहदे आ गई OP दे। एक ही है सांझी भुजा, सांझी भुजा दोनों त्रिभुजां दी। उस तो बाद की है OQ जिहड़ा है वो OR के बराबर है। OQ OR के बराबर है। किदां बराबर है, क्योंकि ये एक ही चक्कर दे की है अर्धव्यास है। एक ही चक्कर दे ये अर्धव्यास बनते पे आ, इस करके इक्वल होंगे। ठीक है, देखो तीन बराबर हो गए। पहला एक ए एंगल 90 डिग्री, दूसरा कॉमन साइड है, तीसरा किया रेडियस अर्धव्यास। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਜਿਹੜੀਆਂ दो सी त्रिभुजां लईआं सी ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ। त्रिभुज ਜਿਹੜੀ है PQO आ ਹੁੰਦਾ साइन ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ। ठीक है, आ वाला ਸਰਬੰਗ ਸਮ है किदे किदे ਸਰਬੰਗ ਸਮ है त्रिभुज PRO ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ PRO ਦੇ। ਜਦੋਂ त्रिभुजां ਸਰਬੰਗ ਸਮ, हाँ एक गल होर ਕਿਹੜੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ RHS लग्या ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। हाइपोटेन्यूज से साइड के राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज से साइड दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है तो दोनों त्रिभुजां की होंदियां ਸਰਬੰਗ ਸਮ होंदियां। ਜਦੋਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ हो जान तो जिहड़ी बाकी बचदियां होंदियां वो भी की हो जाते इक्वल। ठीक है, त्रिभुज दे विच आ चीज़ असीं लै चुके आ भी हो चुकी है, आ भी तो की असीं लै लेना PQ ने किहदे इक्वल बन जाना PR दे। PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, इनू असीं बोल देंगे CPCT करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बाकी जिहड़ियां चीज़ां होणगियां की बन गईयां इक्वल हो गई। सो इस तरह जिहड़ा वा जिहड़े बाहरी बिंदु तो दो स्पर्श रेखावां असीं खिच्चियां वो की हुंदियां वा उन्हां दी लंबाइयां हुंदियां बराबर। ठीक है बेटा, बस बेसिक आइडिया दे विच याद रखना वा बाहरी बिंदु लिया सी P, बाहरी बिंदु तो दो तुसीं लै लईआं स्पर्श रेखावां PQ ते PR लै लईआं। ठीक है, इन्हां दे विच तुसीं की करना पहला रिजल्ट लगना मेन इंपॉर्टेंट कि इहदे विच दस देना कि इन्हां दे दोनों दे विचकार अर्धव्यास आ ते एक ही इहदा स्पर्श रेखा, इन्हां दोनों दे विच एंगल 90 डिग्री हुंदा। ठीक है, वो चीज़ लिख देनी आ। फिर आ दो त्रिभुजां बन गईयां, रचना असीं इसलिए कीती सी दो त्रिभुजां बन गईयां उन्हां नूं सरबंग सम शो करना। सरबंग सम शो करन वास्ते की करना पैंदा, तीन पार्ट तीन चीज़ां नूं असीं बराबर करता। पहली की आई सी दी एक की बने सी एंगल 90 डिग्री दोनों त्रिभुजां विच, फिर की सी दो अर्धव्यास सी ते आ जिहड़ी है सांझी भुजा, तीनों इक्वल हो गए। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਜਿਹੜੀਆਂ त्रिभुजां ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ है, तो जे ਸਰਬੰਗ ਸਮ हो गई तो आ ਜਿਹੜੇ दो बचे PQ ਤੇ PR ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ बराबर होणगे। हाँ जी बेटा, नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन इहदा, ये भी 6 नंबर की थ्योरम है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की है कि सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिकोण विच करण का वर्ग बाकी दो भुजावां के वर्गां के जोड़ के बराबर हुंदा है। तो ये देखो किहड़ा रिजल्ट हुंदा है, इनू असीं की बोलते पाइथागोरस का रिजल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम है बेटा। ठीक है, हुण पाइथागोरस थ्योरम दे विच देखो कि एक समकोण त्रिकोण एरिया एक समकोण त्रिकोण ABC,
एंगल बी है जो वो है 90 डिग्री का। ठीक है, एक समकोण त्रिकोण ये हो गई। हुण इहदे विच की आ जिहड़ा इहदा करण होएगा, हुण AC देखो इहदा करण है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC, इहदा जो करण है इहदा स्केयर किहदे बराबर होएगा, इन्हां दोनों भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर होएगा। ये चीज़ असीं इहदे विच प्रूव करनी है। जिहड़ी चीज़ दित्ती है वो लिखनी है। की दिता होया तुहानूं, दिता है की दिता होया, एक समकोणी त्रिभुज दिती हुई है। ठीक है बेटा, समकोणी त्रिभुज का असीं नाम रख दिता ABC। ABC एक समकोणी त्रिकोण है जिहदे विच एंगल जो B है वो की है, समकोण है, जो कि है वो 90 डिग्री के बराबर है। उस तो बाद की हुंदा लिखना, आपां जो सिद्ध करना है, की आपां सिद्ध करना चाहते हैं, आपां सिद्ध करना चाहते हैं कि जो AC है करण का स्केयर वो किहदे बराबर आंदा पिया, लंब का स्केयर प्लस आधार का स्केयर, AB स्केयर प्लस BC स्केयर। फिर की हुंदा, असीं दिता होया है जो वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया। रचना, रचना हुण असीं इहदे विच रचना किहड़ी कीती है, रचना कीती है कि B तो BD लंब खिंचिया किहदे उपर, AC दे उपर। ठीक है, ये लिख दिता असीं B तो की कीता, BD परपेंडिकुलर खिंच दिता AC ते। ठीक है, ये रचना इहदी हुई। उस तो बाद मेन आया इहदा सबूत। सबूत जिहड़ी चीज़ असीं हुण प्रूव करनी है। देखो हुण सबूत दे विच की करना, दो त्रिभुजां असीं लैणीआं। इहदे विच भी देखो बेसिक कंसैप्ट की आ, एक बारी असीं आह वाली त्रिभुज लैणी है तो ABC पूरी त्रिभुज लैणी है। इन्हां नूं समरूप पहला दसना, समरूप दसना। ठीक है, एंगल जिहड़ा है समरूपता लगा के दोनों नूं असीं समरूप करना। समरूप करन तो बाद असीं समरूप त्रिभुजां दी संगत भुजावां दा समान अनुपात शो करके ते उत्थों इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उस तो बाद असीं की करना, आह वाली त्रिभुज लैणी है, इहदे नाल फिर पूरी ABC लैणी है, दोनों त्रिभुजां लैके उहनूं समरूप करना। हुण देखो की है, पहली त्रिभुज जो असीं लई ये है ट्रायंगल ADB। पहला आह वाली लई ते दूसरी किहड़ी लई असीं त्रिभुज किहड़ी लई, पूरी AB ते C। ठीक है, आह वाली ADB ते ABC दोनों त्रिभुजां लै लईआं। हुण इहनूं समरूप करन वास्ते देखो की है, जे असीं आह वाली त्रिभुज लई, आह असीं इत्थे लंब सुट्टिया होया दा, आह एंगल किन्ने दा हुंदा 90 डिग्री का। ठीक है, आह एंगल किन्ना भी 90 डिग्री का। हुण इहदे विच देखो की बनदा पिया, जे आपां त्रिभुज की गल करिए ADB दे विच ADB आह वाला एंगल किन्ना बनदा पिया 90 डिग्री का। एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस तो बाद ये किहदे बराबर है, एंगल ABC दे। आह वाला कोण भी किन्ना 90 डिग्री का। ठीक है, इहदे विच भी आह वाला एंगल किहदे बराबर है, एंगल ABC दे, ते ये दोनों किहदे इक्वल है 90 डिग्री दे। उस तो बाद देखो ADB दे विच A एंगल आंदा पिया ते ABC दे विच भी एंगल A आ रहा। एंगल A है जो किहदे इक्वल आ गया, एंगल A दे, ते A की बन गया, सांझा कोण है। ठीक है, इहनूं असीं की लिख दिता, सांझा कोण। दो एंगल बराबर आ गए, एंगल समरूपता लग गई। इहदा मतलब की होगा, जिहड़ी दोनों त्रिभुजां असीं लईआं सी वो की बन गया, समरूप। ADB है जो समरूपता दा सिंबल हुंदा, ये किहदे समरूप आ गई, त्रिभुज ABC दे। ठीक है, हुण उस तो बाद देखो बेटा की आ, AB स्केयर असीं प्रूव करना। हुण देखो जे साडे कोल असीं रिजल्ट लगाउण लगे जे दो त्रिभुजां समरूप आ जांदियां ते समरूप त्रिभुजां दियां जो संगत भुजावां वो समान अनुपाती हुंदियां हन। ठीक है, समान अनुपाती। हुण असीं की लैण लगे हां, AD। जे असीं इधरों AD लैंदे पे आ ते इधरों भी की आएगा AB। ठीक है, समरूपता के नियम के अकॉर्डिंग जे AD है तो ये जिहड़ी संगत भुजावां वो किहड़ी होएगी, AB होएगी। इसदा मतलब की आ गया कि AD है जो AD ओवर AB है, ये किहदे बराबर आ गया, AB ओवर AC दे, AB ओवर AC दे। ठीक है, ये किहड़ा रिजल्ट लग गया, इत्थे तुसीं लिख सकते हैं कि जो समरूप त्रिभुजां विच, समरूप त्रिभुजां किहड़ियां सी बेटा, जिहड़ियां दो लईआं सी उपर, समरूप त्रिभुजां विच जो संगत भुजावां हुंदियां हन, संगत भुजावां समान अनुपाती हुंदियां हन। संगत भुजावां समान अनुपाती हुंदियां हन।
ठीक है, ये रीजन इहदा, इसलिए असीं आ लिखिया होया। हुण उस तो बाद देखो इन्हां नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी इधर पहले ही पिया होया, आ ए सी उपर चला जाएगा, इज इक्वल टू बाद देखो की है ए बी इंटू ए बी दो बार आ गया, तो इनू असीं की लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये इक्वल आ गया ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ठीक है, हुण सिमिलरली असीं की करना बेटा, दूसरियां त्रिभुजां लैणियां दो, असीं किहड़ी लैणी बी डी सी ते ए बी सी। हुण लिख लो इनू। ठीक है, इनू इक्वेशन नंबर 1 पा दिओ। हुण आ गया साडे कोल दूसरी त्रिभुज बी डी सी अते त्रिभुज ए बी सी विच, इनू भी समरूप शो करो। समरूपता के वास्ते देखो एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का बनता पिया। हुण तुसीं लिख सकते हैं कि एंगल है जो बी डी सी ते एंगल ए बी सी है, ये दोनों के इक्वल है 90 डिग्री दे। हुण कॉमन एंगल किहड़ा आंदा पिया बी डी सी ते ए बी सी, सी एंगल कॉमन आ रहा दोनों च, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये की है सांझा कोण है दोनों का, दोनों त्रिभुजां दे विच ये सांझा कोण। ठीक है, हुण फिर तो ये समरूपता लग गई, दो एंगल इक्वल हो गए। ये मतलब की होया जिहड़ियां असीं त्रिभुजां लईआं होईआं दो बी डी सी, ये की है समरूप है, ये बन गई समरूप हो गई त्रिभुज ए बी सी दी। हुण तुसीं की लेना डी सी ओवर बी सी, डी सी ओवर बी सी, ये किहदे इक्वल बन जाएगा बी सी ओवर ए सी दे, बी सी ओवर ए सी दे। ठीक है बेटा, हुण ये चीज़ असीं क्यों लई, क्योंकि सानू की चाहिए देखो असीं प्रूव की करना ए बी का स्क्वेयर आना चाहिए तो बी सी का स्क्वेयर आना चाहिए। ए बी का स्क्वेयर देखो सानू इधरों मिल चुका, तो इधरों सानू बी सी का स्क्वेयर चाहिए सी। बी सी का स्क्वेयर कितना चाहिए सी, जे इनू असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बी सी दो बार आंदा, जिद्दां असीं इत्थे कीता सी। इस करके आपां की लिया होया डी सी ओवर बी सी, तो इधरों असीं की लिया, इधर बी सी एक बारी नीचे आना चाहिए सी, दूसरी बारी उपर आना चाहिए सी। इस करके असीं पहला इधरों बी डी सी तो इधरों बी सी नीचे आना सी, फिर असीं बी सी तो ए सी लिया। हुण इन्हां नूं कर दिओ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी सी इंटू ए सी, ये किहदे इक्वल बन गया बी सी इंटू बी सी दे, बी सी इंटू बी सी का मतलब की बन गया बी सी का स्क्वेयर बन गया, ਇਹਦਾ स्क्वेयर आ गया। ਇਹਨੂੰ पा दो इक्वेशन नंबर 2। हुण तुसीं की करो, समीकरण 1 ते 2 नूं जोड़ दिओ। 1 ते 2 नूं जोड़न दा मतलब की है, लैफ्ट हैंड साइड से लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जोड़नी है तुसीं। हुण ये देखो की है ए डी इंटू ए सी, ये 2 नंबर इक्वेशन का देखो आ वाली साइड जोड़ दिओ। ये की है डी सी इंटू ए सी, कि बराबर बनती पी है ये ए बी स्क्वेयर दे प्लस इधरों की आ गया बी सी स्क्वेयर बन गया। देखो ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर तो आ गया, जी चीज़ असीं प्रूव करनी सी। हुण असीं इहनूं बनाना वा ए सी किसी तरह, देखो ए डी इंटू ए सी, ये भी कि ए सी इत्थे है, एक ए सी इत्थे आ, ए सी नूं कढ लो कॉमन, ए सी जो कॉमन कढ़िया ए सी बाहर आ गया, साडे कोल अंदर की बचा ए डी, उस बाद प्लस है ए सी बाहर आ गया, विच की बनता पिया डी सी, तो ये किहदे अगले आ चीज़ एज इट इज़ आ गई। ए सी पिया होया इंटू ए डी प्लस डी सी की है, ए डी प्लस डी सी की बनती पी टोटल ए सी दे इक्वल ही बनेगा। ठीक है ना, ए डी दे डी सी जोड़ दूँगी तो पूरी ए सी बनती पई, तो ये किहदे इक्वल आ गया ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर दे आ गया। ए सी इंटू ए सी किहदे इक्वल हुंदा ए सी का स्क्वेयर, तो ए सी का स्क्वेयर किहदे इक्वल आ गया ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। हैंस प्रूव्ड, यही असीं प्रूव करना सी। ठीक है बेटा, होप्स सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा, इनू तुसीं बहुत ध्यान नाल करो। फाइनल पेपर दे विच भी इन्हां चों ही क्वेश्चन आने आ। जे तुहानूं प्रॉपर लैक्चर समझ आ रहा, प्रॉपर तुसीं होर वीडियोज़ चाहते अगे, तो तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हैं, ताकि जदों भी कोई वीडियो नवीं आवे तो सब तो पहलां तुहाडे कोल पहुंचे। थैंक यू सो मच।